میپکو ٹاسک فورسز کا جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں کریک ڈاؤن۔ ڈی جی خان بہاڑی، بہاولپور ساہیوال، رحیم یار خان مظفر گڑھ، بہاول نگر سرکل میں بجلی چوری پکڑ کر بھاری جرمانے عائد کر دیے۔ فیصل آباد میں علاقے کے تنازع پر دو بھکاری خواتین نے ایک دوسرے کی درگت بنا ڈالی۔ تھپڑوں کا آزادانہ استعمال، ایک دوسرے کے بال بھی نوچ ڈالے۔ اسٹیشن چوک میں دیگر ساتھی خواتین معاملہ دفع کرانے کی کوشش کرتی رہیں۔ شہر شہر گاؤں گاؤں ہفتہ وار تعطیل پر شہریوں نے تفریحی مقامات کا رخ کر لیا۔ نوجوان کرکٹ کھیل کر تو بچے جھولے جھول کر لطف اندوز ہونے میں مصروف۔ دنیا بھر میں پاکستان میں بھی مسیح برادری ایسٹر کا تہوار منا رہی ہے۔ گرجا گھروں میں دعائیہ تقریبات کا انعقاد۔ مسیح برادری کے بچے، خواتین اور مرد حضرات کی بڑی تعداد میں شرکت۔ اور سوئٹزرلینڈ نمائش کے لیے بھجوایا گیا بدھا کا مجسمہ 3.5 ماہ بعد واپس پشاور پہنچ گیا۔ بدھا مجسمے کو 1907 میں مردان کے علاقے سیری بلوال سے دریافت کیا گیا تھا۔ السلام علیکم، پاکستانیوں کی آواز کے ساتھ میں ہوں انوار خاور۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے اس اہم خبر کے ساتھ۔ میپکو ٹاسک فورس کی جانب سے جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈی جی خان بہاڑی، بہاولپور ساہیوال، رحیم یار خان مظفر گڑھ، بہاول نگر سرکل میں بجلی چوری پکڑ کر بھاری جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید بتائیں گے نیوز کے نمائندے عدنان یعقوب۔ عدنان بتائے گا مزید۔ جی بالکل، میپکو ٹاسک فورسز نے جنوبی پنجاب بھر میں کارروائیاں کی ہیں اور ترجمان کے مطابق گھریلو صارفین، میٹر باڈی، ٹیمپر اور لوک سلو، اس کے علاوہ دیگر اسکرین واش کر کے بجلی چوری کی جا رہی تھی، جس میں 90,000 بجلی چوروں کو جرمانہ کیا گیا اور اس کے ساتھ 1,92,000 روپے دیگر تمام جو ہیں چوروں کو جرمانہ کیا گیا ہے۔ اس میں 18 صارفین کے خلاف FIR بھی کا اندراج کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ملتان بہاڑی خانے وال میں 5 کمرشل صارفین پکڑے گئے ہیں، جبکہ ملتان میں ایک صنعتی یونٹ سے بھی بجلی چوری پکڑی گئی ہے۔ میپکو ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب بھر میں یہ کارروائیاں کی گئی ہیں اور کسی بھی طرح جتنے بھی جو بجلی چور ہیں ان کو بخشا نہیں جائے گا۔ یہ تمام کارروائیاں جنوبی پنجاب بھر میں کی گئی ہیں اور ہر طرح سے بجلی چوری کو ناکامی کی طرف لے جایا جائے گا۔ بہت شکریہ عدنان یعقوب، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ رخ کریں گے فیصل آباد کا، جہاں علاقے کے تنازع پر دو بھکاری خواتین نے ایک دوسرے کی درگت بنا ڈالی۔ اسٹیشن چوک میں دوسرے بھکاری کی جگہ پر بھیک مانگنے پر بھکاریوں نے ایک دوسرے کو تھپڑ جڑ دیے، بال بھی نوچتی رہیں، ساتھ ہی خواتین معاملہ رفع دفع کرانے کی کوشش کرتی رہیں۔ ادھر گجرانوالہ میں دوسری شادی سے منع کرنے پر شوہر نے بھائیوں کے ساتھ مل کر پہلی بیوی اور سسر کو مبینہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ متاثرہ خاتون عفیفہ کی 5 سال قبل یاسر کے ساتھ شادی ہوئی تھی، جبکہ گھریلو ناچاکی پر وہ گزشتہ 3 سال سے اپنے والدین کے گھر رہ رہی تھی۔ یاسر دوسری شادی کر رہا تھا۔ اطلاع ملنے پر پہلی بیوی والد کے ہمراہ میرج ہال پہنچ گئی، جس پر یاسر نے اپنے بھائیوں اعظم عاصم کے ساتھ مل کر انہیں تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ نیوز نے اس واقعے کی CCTV فوٹیج حاصل کر لی ہے۔ نیو کی اسکرین پر آپ یہ مناظر بھی ابھی ملاحظہ کریں، گجرانوالہ کے مناظر ہیں جہاں متاثرہ خاتون عفیفہ کی 5 سال قبل یاسر کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ مزید بات کریں گے نیوز کے نمائندے میاں عتیق سے۔ عتیق بتائے گا اس واقعے سے متعلق۔ جی بالکل، یہ دوسری شادی سے منع کرنے پر شوہر کا بھائیوں کے ہمراہ پہلی بیوی اور سسر پر یہ مبینہ تشدد ہے، اس کی فوٹیج نیوز نے حاصل کی ہے۔ یہ عفیفہ نامی جو خاتون ہے، 5 سال قبل اس کی یاسر کے ساتھ شادی ہوئی تھی اور گھریلو ناچاکی کی وجہ سے عفیفہ 3 سال سے اپنے والد کے گھر رہ رہی تھی، جبکہ آج جو یاسر ہے اس نے دوسری شادی کے لیے ہال میں بکنگ کروا رکھی تھی اور وہاں جب وہ شادی ہال میں پہنچے تو وہاں پر یہ خاتون بھی پہنچی اور اس نے وہاں تکرار شروع کی، جس پر یاسر کے بھائیوں نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر اس پر مبینہ تشدد بھی کیا ہے، جس کی CCTV فوٹیج آپ کے سامنے ہے۔ اور عفیفہ کے والد نے گجاگ پولیس کو کارروائی کے لیے درخواست دے دی ہے، جس پر ابھی کارروائی جاری ہے۔ جی بہت شکریہ، عتیق الرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے۔
शहर शहर गांव गांव हफ्तावार तातील पर शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। नौजवान क्रिकेट खेलकर तो बच्चे झूले झूलकर लुत्फानंदोज होने में मसरूफ हैं। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की लहर जारी है, लेकिन छुट्टी के दिन मौज मस्ती का मौका हाथ से कैसे जाने दिया जा सकता है। डेरा गाजी खान में एंजॉय करने के लिए बच्चे, बड़े और फैमिलीज ने तफरीह गाहों और पार्क्स का रुख कर लिया है। इस हवाले से मजीद बताएंगे न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे जौहर अमीन। जी जौहर। जी, मैं इस वक्त डेरा गाजी खान के सिटी पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज संडे के दिन को डेरा गाजी खान के शहरी भरपूर अंदाज में मनाने के लिए अपनी फैमिली के साथ पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ बच्चे जो हैं क्रिकेट खेल कर इंजॉय कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि उनको कैसा फील हो रहा है और वो अपनी छुट्टी कैसे मनाएंगे। जी, आज संडे का दिन है और हम बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। मेरे सारे कज़न और हम फैमिली के लोग सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। घर में भी खाने पक रहे हैं। आज हम संडे के दिन को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हमने क्रिकेट खेल लिया और हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी थोड़े मैच लगाएंगे। हम बड़े बच्चे तो सारे खेल रहे हैं, तो हमारे जो छोटे बहन भाई हैं वो यहाँ पे झूले खेल रहे हैं। बस मेरी यही गुजारिश है कि आप हमारे ग्राउंड को थोड़ा और बेहतर करें ताकि हम और एंजॉय कर सकें अपने संडे के दिन को। जी, आपने बच्चों से सुना, बच्चों का कहना ये है कि संडे को भरपूर एंजॉय करने के लिए वो यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं, जबकि जो ख़ास तौर पे छोटे जो बच्चे हैं और जो फैमिली है वो खाने बनाने में लगी हुई है और छोटे बच्चे झूले झूल कर अपनी मौज मस्तियाँ कर रहे हैं। बच्चों का ये भी कहना है कि पार्क्स में जो झूले हैं और जो ग्राउंड जो बनाए गए हैं उनको साफ़ सुथरा किया जाए ताकि वो मज़ीद इंजॉय कर सकें। जी, उधर खैबर पख्तूनख्वा में यूनियन काउंसिल की सतह पर खेलों के मैदान तामीर कराने के ऐलानात सिर्फ ऐलानात तक ही महदूद रहे। 4 सदा के इलाके तंगी में मकामी फलाही तंजीम अपने मुंतखब नुमाइंदों से दिल बर्दाश्ता होकर अपनी मदद आपके तहत मकामी खिलाड़ियों के लिए मैदान बना रही है। तफसीलात बताएंगे न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे नसरुल्लाह खटक। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ ज़िला 4 सदा के इलाका तहसीली तंगी में। सूबाई हुकूमत की जानिब से ये ऐलानात तो की गई थी कि यूनियन कौंसिल की सतह पर मकामी खिलाड़ियों के लिए खेलों के मैदान बनाए जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर मामला जो है ना वो उलट है और यहाँ पर मकामी फलाही तंजीम है वो अपनी मदद आपके तहत जो है ना यहाँ पर ग्राउंड जो है खिलाड़ियों के लिए बना रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक इलाके की एक सियासी समाजी शख्सियत मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पे बहुत टैलेंट मौजूद है, उनको पॉलिश करने की ज़रूरत, तो फिलहाल उनको जगाने की ज़रूरत है सियासतदानों को कि अपने ऐलान को अपने अमल जमा। सियासतदान जो है उनको जगाने की ज़रूरत है और जो है ना अगर वो एक दफ़ा जाग गए तो फिर ये हमारे जो ये मसाइल है, जो फलाही काम है, फिर अपनी मदद आपके तहत इसको कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, उधर गोजरा में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किए गए पब्लिक पार्क में सहूलियात का फुकदान है। पार्क की कैंटीन अरसा दराज से बंद है। पार्क में सैर के लिए आने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से मजीद बताएंगे न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे आबिद सिद्धू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोजरा के सबसे बड़े पब्लिक पार्क में, जो कि करोड़ों रुपए की लागत से है जो तमीर किया गया है। आज संडे का रोज़ है, छुट्टी का दिन है, लेकिन शहरी जो है इक्का दुक्का ही पार्क में नज़र आ रहे हैं। शहरी हैं जो उनके लिए जो उनकी सहूलियात के लिए कंटीन बनाई गई थी वो भी अरसा दराज से बंद है। पार्क में सहूलियात का फकदान है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इस सिलसिला में उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, संडे का रोज़ है और हम आज तफरी की गर्ज से यहाँ पे आए। नॉर्मल दिनों में तो छुट्टी नहीं होती, ना वक्त मिलता है, लेकिन संडे के रोज़ पार्क में आते हैं सैर व तफरी के लिए। लेकिन यहाँ पर वीरानी नज़र आ रही है, किसी भी किस्म की सहूलियात नहीं है, ना तो कैंटीन पर कोई खाने पीने का सामान है और ना ही यहाँ पर जो आप अपनी बाइक खड़ी करके आते हैं तो कोई किसी किस्म की सहूलियात नहीं, पीने का पानी नहीं है, वाशरूम्स जो हैं वो यहाँ पर बिल्कुल मौजूद ही नहीं है। तो हुकूमत ने इतना ज़्यादा पैसा इस पार्क पे लगा दिया, इतना रकबा इसको अलॉट कर दिया है और इतना बजट इसमें लगा दिया, लेकिन शहरियों के लिए तो यहाँ पर कोई सहूलत है ही नहीं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, शहरियों का कहना है कि कंटीन जो है अरसा दराज से बंद है। लिहाजा शहरियों का हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि ये जो कंटीन है इसको ओपन किया जाए और पार्क की तज़ीन व आराइश की जाए ताकि सैर व तफरी के लिए आने वाले शहरी मज़ीद एंजॉय कर सकें। जी, और माहसेरा में छुट्टी के दिन फैमिलीज ने पार्क्स और सयाहती मकामात का रुख कर लिया। शहरियों का कहना था कि माहसेरा सयाहती मकाम होने के बावजूद यहाँ पर कोई बड़ा पार्क नहीं है जिससे बच्चों की खुशियाँ मान पड़ जाती हैं। तफसीलात बताएंगे अकील अहमद।
मासेरा के शहरियों ने इतवार की छुट्टी का रोज एंजॉय करने के लिए अपनी फैमिलीज के साथ पार्क्स और सयाहती मकामात का रुख कर लिया। फैमिलीज मजे मजे के पकवान बनाकर भी साथ लाईं। पार्कों में लगे झूले बच्चों के लिए खुसूसी दिलचस्पी का बाइस बने। बहुत अच्छा लग रहा है और अभी हम फ्लाइंग कार पे रहे थे तो उसके बाद हम शिप पे जाएंगे। हमें बहुत मजा आ रहा है, हम कश्ती में बैठे, ट्रेन में बैठे। वालिदैन का कहना था मासेरा सयाहती मकाम होने के बावजूद यहाँ कोई बड़ा पार्क नहीं जिससे बच्चों की खुशियाँ मान पड़ जाती हैं। मासेरा सयाहती मकाम होने के बावजूद बच्चों के खेलने के लिए, उनके सस्ती तफरीह के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। शहरियों का कहना था निजी पार्क में सैर के लिए आने वाली माने किराए वसूल किए जाते हैं। शहरियों ने सैर व तफरीह के लिए बड़ा पार्क बनाने का मुतालबा किया। अकील अहमद, न्यू न्यूज़, मासेरा। और दुनिया भर की तरह पाकिस्तान के शहर शहर गांव गांव में मसीह बरादरी ईस्टर का त्यौहार मजहबी जोशो जज्बे से मना रही है। फैसलाबाद से मसीह बरादरी के त्यौहार पर साजिद खान की रिपोर्ट देखते हैं। दूसरे शहरों की तरह संती शहर में भी मसीह बरादरी ईस्टर का त्यौहार मना रही है। इस हवाले से गिरजाघरों में दवाइया तकरीबात का इनकाद किया गया। तकरीब में मसीह बरादरी के बच्चे, खवातीन और मर्द हजरात की बड़ी तादाद शरीक हुई। मैं अपने सब मसीह बहन भाइयों को ईस्टर की मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि इतना मुबारक दिन आज हमारी ज़िंदगी में आया है। जिनके पास घर नहीं है, जो बगैर कपड़ों के हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं उनके लिए दुआ करना चाहती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह उनको हमेशा खुश रखे और उनको सलामती इनायत फरमाए। आमीन। ईस्टर के मौके पर नए मलबूसात पहनने मसीह बरादरी की खुशी दीदनी थी। मसीह बहन भाइयों ने गिरजाघरों में लगे स्टॉल से खरीदारी की और एक दूसरे को ईस्टर की मुबारकबाद भी देते नजर आए। रोज़ों के बाद जब हमारा ईस्टर आता है, खुशी का त्यौहार होता है हमारे लिए। इसके लिए हम सारी अपनी कलीसिया के लिए और मुस्लिम भाइयों के लिए भी प्रेयर करते हैं। अपनी कौम के लिए, हिफाजत के लिए दुआ करते हैं। हम मसीही इदारों के लिए दुआ करते हैं कि जितने भी हैं प्लेटफॉर्म में, जैसे पाक फौज है, बहरिया है, इन सब इदारों के लिए ख़ास तौर पर हम प्रेयर करते हैं। गिरजाघरों में दवाइया तकरीबात में मुल्की सलामती के लिए भी खुसूसी दुआएं की गईं, जबकि जिले पुलिस की जानब से गिरजाघरों की सिक्योरिटी के लिए भी फुल इंतजाम किए गए थे। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ साजिद खान, न्यू फैसलाबाद। और शाहकोट में भी ईस्टर का त्यौहार जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। गिरजाघरों में ईस्टर के हवाले से तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। इस वक्त न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शाहकोट में भी ईस्टर का त्यौहार मजहबी जोशो जज्बे और अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। गिरजाघरों में दुआया तकरीबात का सिलसिला जारी है और मजहबी प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। मेरे साथ फादर गुलशन हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। आज की इस इबादत की मुनासबत से हम मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए, हुकूमत वक्त के लिए और पाकिस्तान के अदारों के लिए दुआ करते हैं ताकि हमारा मुल्क दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करे। इस मौके पर मसीही बरादरी इंतहाई खुश नज़र आ रही है और एक दूसरे को तोहफे तोहफ़े भी दिए जा रहे हैं और मुल्क पाकिस्तान की तरक्की व खुशहाली के लिए गिरजाघरों में खुसूसी दुआएं भी मांगी जा रही हैं। जी, और मुल्क भर की तरह मरी में भी ईस्टर के त्यौहार की तकरीबात का इनेकाद किया गया। मरी के तारीखी होली ट्रिनिटी चर्च में मसीह बरादरी की बड़ी तादाद इस तकरीब में शरीक हुई। इस मौके पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए। तमाम सिक्योरिटी की निगरानी ASP मरी मैडम फरियाल फरीद और SHO मरी खुद कर रहे हैं। इसके अलावा चर्च के अतराफ पाक आर्मी और दीगर सिक्योरिटी इदारे हाई अलर्ट हैं। दाखिले के वक्त सख्त चेकिंग के बाद मसीह बरादरी को दाखिल होने की इजाज़त है। उधर मुजफ्फराबाद में रिवर वाटर राफ्टिंग और कश्ती रानी से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद दरिया झेलम पर पहुंच गई। दरिया की तुंदो तेज और खतरनाक मौजों पर कश्ती बानों ने ऐसे चप्पू चलाए कि देखने वालों पर सहर तारी कर दिया। मुजफ्फराबाद में दरिया झेलम पर रिवर वाटर राफ्टिंग और कश्ती रानी का इनेकाद। शहरियों की बड़ी तादाद लुत्फानंदोज होने दरिया झेलम पर पहुंच गई। दरिया की तुंदो तेज मौजों में कश्ती बानों ने कश्ती रानी के खूब जौहर दिखाए। सयाहों का कहना था कुदरती हुस्न से माला माल आजाद कश्मीर में सयाहों के लिए सयाहत और तफरीह के भरपूर मौके मौजूद हैं। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो बहुत ज़्यादा अच्छा गया। स्टार्ट में आई वाज लिटिल बिट स्केयर्ड कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, बट आफ्टर दैट आई वाज लाइक दैट वाज सो एंजॉयबल। सयाह कश्तियों में सवार होकर खूबसूरत मनाजिर से लुत्फानंदोज हुए। नसीर चौधरी, न्यू न्यूज़, मुजफ्फराबाद। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। गंधारा आर्ट नुमाइश के लिए स्विट्जरलैंड भेजा जाने वाला कोलोसल बुद्धा का मुजस्समा 3.5 माह बाद वापस पेशावर के अजायब घर पहुंचा दिया गया। कोलो बुद्धा मुजस्समा को स्विट्जरलैंड की हुकूमत के माली ताउन से ज्यूरिख में मुनक्किदा नुमाइश के लिए ले जाया गया था। 3 मीटर लंबे कोलोसल बुद्धा के मुजस्समे को 1907 में जिला मर्दान के इलाके सेरी बहलोल से दरियाफ्त किया गया था। बुद्धा मुजस्समा को स्विट्जरलैंड की हुकूमत के माली ताउन से नुमाइश के लिए ले जाया गया था और अब ये मुजस्समा वापस आ चुका है। स्विट्जरलैंड नुमाइश के लिए भिजवाया गया बुद्धा का मुजस्समा 3.5 माह बाद वापस पेशावर पहुंच गया है। पेशावर में फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन। बड़ी मिकदार में गैर मयारी दूध और हजारों लीटर जाली मशरूबात कब्जे में लेकर ज़ाया कर दिए। दूसरी जानिब दूध में मिलावट करने वाले कई अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पेशावर से रिपोर्ट कर रही हैं नाब रिजवान। पेशावर में फूड अथॉरिटी की गैर मयारी अशियाए खुर्दनोश फिरोख्त करने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई। नश्तराबाद में छापों के दौरान दुकानों और गोदामों से 5000 लीटर जाली मशरूबात कब्जे में ले लिए। खंदू रोड पर कार्रवाई के दौरान दूध में पानी मिलाने वाले 4 शीर फरोश गिरफ्तार। दुकानें सील कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी हुकाम का कहना है गैर मयारी अशिया फिरोख्त करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। नाब रिजवान, न्यूज़ पेशावर। और तल्ख हालात का मुकाबला करने वाले लोग मुआशरे में तहसीन के काबिल होते हैं। इन्हीं बाहिम्मत लोगों में जहलम का नुमान वलाद भी शामिल है, जो दोनों बाजुओं से महरूम होकर भी अपनी जिंदगी के तमाम उमूर पाँव से अंजाम देता है। मजीद देखते हैं उमैर अहमद राजा की रिपोर्ट में। झेलम की तहसील पटानन खान का दोनों बाजुओं से महरूम नौजवान नुमान विलायत कंप्यूटर साइंस में मैट्रिक पास है, लेकिन वसाइल न होने की वजह से आगे तालीम जारी न रख सका। नुमान पाँव के जरिए तमाम काम कर सकता है। इसे रोजगार की तलाश है ताकि अपने घर वालों का पेट पाल सके। मैं दोनों हाथों से माजूर हूँ। मैंने कभी आज तक भीख नहीं मांगी और ना ही मांगूंगा। और मेरे वालिद साहब फौत हो चुके हैं, मेरी 5 बहनें हैं और हम 2 भाई हैं। तो मेरी हुकूमत से अपील है कि मुझे जॉब दी जाए। नुमान विलायत का ताल्लुक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के हल्के से है। बाहिम्मत नौजवान ने आला हुक्काम से रोजगार देने की अपील की है। उमैर अहमद राजा, न्यूज़ झेलम। और हैदराबाद में भी पैरों से माजूर शख्स भीख मांगने के बजाय मेहनत और मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर रहा है। 15 साल से कुर्सियां बनने की मजदूरी के दौरान उसने कई मरतबा सरकारी मुलाजमतों के लिए दरख्वास्तें दी, लेकिन मायूसी हुई। इस हवाले से देखते हैं हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख की रिपोर्ट। माजूरी मजबूरी नहीं, ये सब कर दिखाया हैदराबाद के रिहायशी पाँवों से माजूर मोहम्मद फारूक ने, जो 15 साल से माजूरी के बावजूद मेहनत मजदूरी करके अपने और अपने अहले खाना की किफ़ालत कर रहा है। मोहम्मद फारूक सारा दिन व्हील चेयर पर घूमकर कुर्सियां बुनने की मजदूरी करता है और इससे हासिल होने वाली हक हलाल की कमाई से अपना गुजर बसर करता है। मैं माजूर ज़रूर हूँ, मजबूर नहीं हूँ। मैं अपनी मेहनत करके खाना चाहता हूँ, हाथ नहीं फैलाना चाहता, भीख नहीं मांगना चाहता, अपना हक मांग रहा हूँ। हक चाहिए मेरे को। मोहम्मद फारूक ने सरकारी मुलाजमतों में माजूरों के 5% कोटे पर मुलाजमत के लिए मुख्तलिफ इदारों में दरखास्तें भी दी, लेकिन मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिला। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यूज़ हैदराबाद। उधर मानावाला में परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में मंजूर किया गया वाटर सप्लाई का मंसूबा ताहाल फंक्शनल ना हो सका, जिसके बायस अवाम को पानी की किल्लत का सामना है। मजीद बताएंगे न्यूज़ के नुमाइंदे राना शाहिद। जी बिल्कुल, हुकूमतें बदलती रहीं और इक़्तिदार मुंतकिल होता रहा। इक़्तिदार की चिड़िया 15 साल से मानावाला का मुकद्दर रही, लेकिन मानावाला के वासियों की तकदीर न बदल सकी। वाटर सप्लाई का मंसूबा जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 5 करोड़ की लागत से शुरू हुआ, आज 20 साल बीत गए, ताहाल फंक्शनल ना हो सका। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। इस मनसूबा शुरू हुआ है ना, ये उस वक्त से ही ठेकेदार की मिली भगत से ये सारे का सारा पाइपलाइन मनसूबा बड़े बगैर मयारी मटेरियल से बनाया गया है, जिसको जब भी उन्होंने कोशिश की पानी छोड़ने की, तो पानी जगह जैसे लीक होता है,
और लोगों के जो मकानात हैं वो बर्बाद होने का ख़तरा पैदा हो जाता है। हमारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब से अपील है कि इस की तरफ नोटिस लें और इसको फिलफौर बहाल किया जाए। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बलूचिस्तान के ज़िला किच्ची की तहसील भाग में गुज़श्ता 3 रोज़ से 200 से ज़ायद अफराद सैलाबी पानी में फंस गए हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। हालिया सैलाबी रेलों से ज़िला किच्ची की तहसील भाग का इलाका ज़्यादा मुतासर हुआ है। मुतासरीन ने हुकूमत से फौरी तौर पर इमदाद की अपील की है। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर दाखिला का कहना है कि बलूचिस्तान हुकूमत ने मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों और लोगों के नुकसानात के इजाले के लिए वफाकी हुकूमत से 10 अरब रुपये तलब किए हैं। हालिया बारिशों और यालाबारी से मुजफ्फरगढ़ में गंदम और दीगर फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। किसानों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत गंदम की कीमत में इजाफे के साथ खाद, बीज और डीजल की कीमतों में कमी करे और काश्तकारों के छोटे कर्जों को माफ़ किया जाए ताकि उनके नुकसान का किसी हद तक अजाला हो सके। जी बिल्कुल, इस समय मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ में। मैं आपको बताता चलूँ कि हालिया बारिशों की वजह से गंदम की फसल को और आम के बागात को शदीद नुकसान पहुँचा है, जिसकी वजह से काश्तकार हैं वो इंतहाई मुश्किलात और परेशानी में मुब्तला हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ काश्तकार। आइए इनसे जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। मेरा इमरान खान से, हुकूमत से और पंजाब पे आला से रिक्वेस्ट है कि हमने कर्ज़ा लेकर ये अपनी खेतें लगाई हैं और बाग भी देख रहे हैं, आम के दरख्त भी देख रहे हैं, सारा हमारा नुकसान हो गया है बारिशों की वजह से और तूफ़ान की वजह से। पुलिस हमारे रिक्वेस्ट है इमरान खान से कि हमारा नुकसान पूरा किया जाए और ये खादों का रेट और ये जो फसल का रेट है ये भी बढ़ाया जाए और डीजल भी बहुत महंगा है, इसको भी कम किया जाए। उनका यही कहना है कि इन बारिशों की वजह से उनके मकानात को, बागात को और गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुँचा है। उन्होंने हुकूमत वक्त से यही मुतालबा किया कि तो गंदम के रेट में इजाफा किया जाए, खाद और डीजल के रेट को कम किया जाए ताकि उनका किसी हद तक अजाला हो सके। जी उधर फैसलाबाद में हालिया बारिशों के बायस कटाई के लिए तैयार गंदम का बेशतर रकबा तबाह हो चुका है, जिसके बायस किसान इंतहाई परेशान हैं। नुमाइंदा नियो वकास शराज मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, अगर फैसलाबाद की बात की जाए, फैसलाबाद में जो है गंदम सबसे ज़्यादा जो काश्त की जाती है। इसी वक्त अगर बात की जाए हालिया जो बारिशें हुई हैं, साराबारी हुई है, जिसकी वजह से जो किसानों के बेशतर जो रकबे गंदम के रकबे थे वो तबाह हो गए हैं और अभी भी जो गंदम खड़ी है उसके जो है दाने जो ब्लैक हो गए हैं। किसान मौजूद है, उनसे बात करते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। जी, जो हालिया बारिशें और सालाबारी हुई है इसकी वजह से गंदम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। तकरीबन करोड़ों रुपए का किसानों को नुकसान पहुंचा है और गंदम जो है सारी तबाह हो गई है, वो काली हो रही है। अभी तक कटाई शुरू नहीं हुई, सिर्फ मौसम का इंतज़ार कर रहे हैं, मौसम ठीक हो जाए तो फिर कटाई शुरू की जाए। बारिशें होने की वजह से करोड़ों रुपए का जो उनको नुकसान हुआ है और जो गंदम बाकी रह गई उसकी भी अभी तक कटाई शुरू नहीं हो सकी। और अभी वो यही दुआ गो है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल जो है अभी जो बारिशों को ना हो, उनकी दुआ यही है कि ये गंदम की कटाई हो जाए, उसके बाद जो है बारिशें हों। जी और सरगोदा में रमज़ान मुबारक की आमद से कबल ही अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ और नाजायज़ मुनाफ़ाखोर भी सरगर्म हो गए हैं। मज़ीद बता रहे नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद इमरान गुराया। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक की आमद से कबल ही अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया गया है। पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतों के साथ ट्रांसपोर्टर हजरात ने भी जो है किरायों में इजाफ़ा कर दिया था, जिसके साथ महंगाई का एक तूफ़ान जो है वो बर्पा हो गया। जिसके साथ जो है यहाँ पर जो सब्ज़ियाँ हैं, सब्ज़ियाँ, फल और दीगर अशियाए खुर्दोनोश जो ज़रूरी अशियाए ज़िंदगी की है वो तमाम तर जो है वो महंगी कर दी गई हैं। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। जो ज़िली इंतज़ामिया है वो बिल्कुल खामोश है। कोई प्राइस मजिस्ट्रेट जो है वो इस सिलसिला में कोई काम नहीं कर रहा। अगर ये महंगाई का यहाँ कीमतें जो हैं वो कंट्रोल ना की गई तो रमज़ान मुबारक में जो है वो अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफ़ा होगा। मैं इतवार बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर सब्ज़ी, फलों और दीगर अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में जो है बेपनाह इजाफ़ा कर दिया गया है, जिससे शहरी जो हैं वो मुश्किलात से दो चार हैं। अभी रुख करेंगे जहानिया का, जहाँ गर्मी में इजाफे के साथ ही शहरियों ने गन्ने के रस की दुकानों का रुख कर लिया। मज़ीद बताएंगे अब्दुल सलाम नाज अपनी रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह जहानिया में भी गर्मी की शिद्दत आ गई। मशरूबात की मांग में इजाफा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गन्ने के रस की दुकानों पर अवाम का रश। शहरियों का कहना है कि गन्ने का रस खालस, मियारी और सस्ता है।
और दूसरे मशरूबात से बेहतर भी है। गन्ने का रस ये जो है ना, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसमें जो नींबू और अदरक डालते हैं ना, ये बाज़ार में मशरूबात बिकते हैं ना बाज़ार में, उससे ये काफ़ी बेहतर होता है, इसलिए हम इसे रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। गन्ने के रस की तैयारी में लीमू, अदरक और नमक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मशरूब मज़ीद खुशजायका हो जाता है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि गन्ने का रस मेदे और जिगर की इस्लाह और गर्मी के असरात को ज़ायल करता है। गन्ने का रस गर्मियों में जो है ना बेहतरीन मशरूब है। इसके अंदर आयरन, फास्फोरस और कैल्शियम की मिकदार बदरजा तो मौजूद होती है, और ये अक्सर हड्डियों के लिए, गुर्दे की नालियों के लिए और जिस्म के पट्ठों के लिए और जिगर के अमराज के लिए बेहतरीन मशरूब है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक गन्ने का रस निकालने वाली मशीनों की सफाई इंतहाई ज़रूरी है। गंदी मशीनों से निकलने वाला रस सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब्दुल सलाम नाज, नियो न्यूज़, जहानिया। हारूनाबाद के दही भल्ले मुल्क भर से लोग शौक से खाने आते हैं। फवारा चौक में 50 साल पुरानी दुकान के दही भल्ले लज्जत, जायके और मयार के लिहाज से मशहूर हैं। दही भल्ले के स्टॉल पर शौकीन अफराद का हुजूम रहता है। देखते हैं चौधरी तारिक जावेद की रिपोर्ट। हारूनाबाद फवारा चौक के दही भल्ले अपनी मिसाल आप। दूर दराज इलाकों से भी लोग यहाँ दही भल्ले खाने खास तौर पर आते हैं। लज्जत, जायके और मयार की वजह से स्टॉल पर शौकीन अफराद का हुजूम रहता है। ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਨੇ ਆ ਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਬੜੇ ਟੇਸਟੀ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਫੈमिली ਨਾਲ ਆਨੇ ਆ, बाज़ दफ़ा दोस्तों नाल भी आने हैं। फवारा चौक में 50 साल पुरानी दुकान पर दही भल्ले 120 रुपए किलो, समोसा 15 रुपए और शामी कबाब 10 रुपए में फरोख्त किया जाता है। दुकानदार का कहना है बैरून मुल्क से भी लोग यहाँ दही भल्ले खाने आते हैं। म्यार अच्छा, 120 रुपए किलो दही भल्ले दे रहे हैं, 15 रुपए का समोसा दे रहे हैं, 10 रुपए की शामी दे रहे हैं। 40-50 साल हो गए भाई हमीद ने भी रेडी लियाउंदे नु, 24 साल हो गए सानू इहदे कोल काम करदे नु। शहरी अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ भी दही भल्ले खाकर लुत्फ अंदोज होते हैं। कैमरामैन जाहिद हुसैन अंजुम के साथ चौधरी तारिक जावेद, नियो न्यूज़, हारूनाबाद। और अमन बहाली के बाद जिले इंतजामिया लाहौर दीर के जेर इंतजाम रंगों से भरी सुपरलिद खुशालो 2 रोज़ा मेला सजा तो छोटे बड़े और बुजुर्ग सब पहुँच गए। लाहौर दीर में मुनक्किदा 2 रोज़ा स्प्रिंग फेस्टिवल की कहानी नवाब बादशाह की ज़बानी। हंसते मुस्कुराते और खुशी से खिलखिलाते चेहरे, ये मनाजिर है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोअर दीर के जेर इंतजाम मुनक्किदा 2 रोज़ा स्प्रिंग फेस्टिवल के, जिसका बाकायदा इफ्तिताह कमिश्नर मालाकंड रियाज महसूद ने किया। ये सूबाई हुकूमत की पॉलिसी है कि पूरे सूबे में ये स्प्रिंग फेस्टिवल्स हों, उस सिलसिले की ये एक अहम कड़ी थी जो आज आपने देखी है। मेले में जा हैंडीक्राफ्ट, मलबूसात, बच्चों की तैयार करदा पनपारे और काश्तकारी के कदीम आलात खूबसूरती से सजाए गए थे। वही मकामी सकाफत की झलक भी उम्दगी से पेश की गई। आज की इस मेले ने न सिर्फ दीर की आवाम को बल्कि पूरी पाकिस्तान को अमन का पैगाम दिया है। एथलेटिक्स ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से हाजिरीन से खूब दाद ली, जबकि कमिश्नर मलाकंड ने दीगर मेहमानों के हमरा स्टॉल्स का मुआयना किया। फेस्टिवल के इनेकाद ने लोअर दीर के बासियों को खुशियाँ मनाने और मायारी तफरीह का मौका फराहम किया। कैमरामैन मोहम्मद फयाज के साथ नवाब बादशाह, न्यू न्यूज़, तेमरगरा, लोअर दीर। और मौसम के बदलते अंदाज के साथ ही खवातीन के पहनावे भी तब्दील हो गए। पेशावर के बाजारों में मौसम गर्मा के मलबूसात की खरीदारी के लिए खवातीन का रश बढ़ गया। तफसीलात बताएंगी नायाब रिजवान। पेशावर में मौसम की तब्दीली के साथ खवातीन के पहनावे भी तब्दील। मौसम सर्दी का हो या गर्मी का, पेशावर की खवातीन हर मौसम में जाजिब नजर आने के लिए पुरजोश। मौसम के बदलते अंदाज के साथ खवातीन अपने पहनावे भी तब्दील करती हैं। अभी मैं आई हूँ ड्रेसेस के लिए और यहाँ पर बहुत अच्छे ड्रेसेस हैं, काफी अच्छी कलेक्शन हमें मिल रही है। पेशावर के बाजारों में मौसम गर्मा के मलबूसात की खरीदारी के लिए खवातीन का बेपनाह रश। खवातीन अपनी अपनी पसंद के मलबूसात खरीदने में मसरूफ है। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ नायाब रिजवान, न्यू न्यूज़, पेशावर। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।